Should the Christians wear white? Another cult in Christianity is wearing white and thinking that the rest is unholy. People wearing white in Christianity think themselves superior to others. They think that by wearing it they are pure, holy and blemishless. क्या ईसाइयों को सफेद पोशाक पहननी चाहिए? ईसाई धर्म में एक और पंथ सफेद पहने हुए है और यह सोच रहा है कि बाकी अपवित्र है। ईसाई धर्म में गोरे कपड़े पहनने वाले लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। वे सोचते हैं कि इसे धारण करने से वे पवित्र और दोष रहित हैं। Certain people argue saying, don't you know that the dress code in heaven is white? So the group preparing to go to heaven should wear white only. Many Bible verses talks about this white dress in heaven. He who overcomes will like them be dressed in white. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. Then each of them was given a white robe. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Then one of the elders asked me, these in white robes, who are they and where did they come from? कुछ लोग यह कहते हुए बहस करते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि स्वर्ग का ड्रेस कोड सफेद होता है, इसलिए स्वर्ग जाने की तैयारी करने वाले समूह को सफेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। कई बाइबल छंद स्वर्ग में इस सफेद पोशाक के बारे में बात करते हैं। जो विजय प्राप्त करता है वो उनके समान श्वेत वस्त्र धारण करेगा। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे संग चलेंगे क्योंकि वे योग्य हैं। तब उनमें से प्रत्येक को एक सफेद वस्त्र दिया गया। वे सफेद रस्सियां पहने हुए थे और हाथों में ताड़ की शाखाएं पकड़े हुए थे। तब एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, ये कौन है और कहां से आए हैं? So many verses in the Bible says that the victorious believers in heaven will be seen in white clothes. Yes, it is true because it is written in Bible. But we haven't yet reached heaven. We are still living in this world. Whatever white cloth we used in this world cannot be matched with the one which heaven provides. बाइबल में इतने सारे छंद कहते हैं कि स्वर्ग में विजयी विश्वासियों को सफेद कपड़ों में देखा जाएगा। हाँ, यह सच है क्योंकि यह बाइबल में लिखा है, लेकिन हम अभी तक स्वर्ग में नहीं पहुँचे हैं। हम अभी भी इस दुनिया में हैं। इस दुनिया में हम जो भी सफेद कपड़े का उपयोग करते हैं उसकी तुलना स्वर्ग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कपड़े से नहीं की जा सकती। We can see this while Jesus Christ was transfigured. His clothes was as white as the light. Till then, his clothes were as ordinary as others. When the glory of the heaven came down, his clothes illumination changed. This was recorded in Mark Gospel as his clothes became dazzling white, whiter than anyone in the world could bleach them. Luke has written like this, as he was praying, the appearance of his face changed and his clothes became as bright as a flash of lightning. So whoever enters into glory will be transformed like that. No worldly cloth can give such transfiguration, however you try. हम इसे देख सकते हैं, जब यीशु मसीह का रूपांतरण किया गया था उसके कपड़े प्रकाश की तरह सफेद हो गए थे। तब तक उनके कपड़े दूसरों की तरह ही साधारण थे। जब स्वर्ग की महिमा नीचे आई तो उसके कपड़े की रोशनी बदल गई। यह मार्क गॉस्पेल में दर्ज किया गया था क्योंकि उसके कपड़े चमकदार सफेद हो गए थे। दुनिया में कोई भी उन्हें ब्लीच कर सकता था। ल्यूक ने इस तरह लिखा है, जैसा कि वो प्रार्थना कर रहा था उसकी उपस्थिति उसका चेहरा बदल गया और उसके कपड़े बिजली की चमक के समान चमक उठे। तो जो कोई भी महिमा में प्रवेश करता है वो उसी तरह रूपांतरित हो जाएगा। कोई भी सांसारिक कपड़ा ऐसा रूपांतरण नहीं दे सकता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। God doesn't see our outward changes. He looks at our heart. No outward gimmicks can cheat God. As he said in the Bible, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him.
The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. By wearing white, you cannot become righteous in God's eyes. According to the Bible, the righteous in Christ, once they come to heaven, will be awarded with white robes. So our motive here on the earth shouldn't be roaming around in white cloths and thinking we are righteous. Instead, we must keep ourselves pure away from sin, and being righteous automatically will get you to where you can have that white robe which God gives. परमेश्वर हमारे बाहरी परिवर्तनों को नहीं देखता है, वो हमारे दिल को देखता है। कोई बाहरी चालबाज ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। जैसा कि उसने बाइबल में कहा, उसके रूप या उसकी ऊंचाई पर विचार न करें, क्योंकि मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। यहोवा उन चीजों को नहीं देखता जो मनुष्य देखता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। श्वेत वस्त्र धारण करने से आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नहीं बन सकते। बाइबल के अनुसार मसीह में धर्मी एक बार स्वर्ग में आने के बाद उन्हें सफेद वस्त्र से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पृथ्वी पर हमारा मकसद सफेद कपड़ों में घूमना और यह नहीं सोचना चाहिए कि हम धर्मी हैं। इसके बजाय हमें खुद को शुद्ध रखना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, और धर्मी होने से आप स्वतः ही स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जहां आपको वो सफेद वस्त्र मिल सकता है जिसे भगवान देता है। To whom God is going to give this white dress, not to the ones who are wearing white in this world, but whoever found victorious by overcoming sin and temptations shall be admitted to this glorious reward. There is no harm in wearing colored clothes. Even Christ has clothed in red before crucifixion. God has expressed his desire to clothe his followers. There he didn't express that they must be in white. Instead, he gave example of wildflowers. Just as he clothed them, he promised to clothe his beloved also. In the Bible, the verse says, "Consider how the lilies glow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothed the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, O you of little faith." जिसे भगवान यह सफेद पोशाक देने जा रहे हैं, उन्हें नहीं जो इस दुनिया में सफेद पहने हुए हैं, लेकिन जो कोई भी इस दुनिया के पाप और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करके विजयी पाया, उसे इस शानदार इनाम में भर्ती कराया जाएगा। रंगीन कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। क्रूस पर चढ़ने से पहले मसीह भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। भगवान ने अपने अनुयायियों को इस धरती पर कपड़े पहनाने की इच्छा व्यक्त की है। वहां उन्होंने यह व्यक्त नहीं किया कि उन्हें सफेद रंग में होना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने जंगली फूलों का उदाहरण दिया। बस उन्होंने उन्हें कपड़े पहनाए। उन्होंने अपने प्रिय को भी कपड़े पहनने का वादा किया। बाइबल में पद्य कहता है, गौर कीजिए कि लिली कैसे चमकती है। वे परिश्रम या कटाई नहीं करते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में इनमें से किसी के समान नहीं पहनाया था। यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज यहाँ है और कल आग में झोंक दी जाती है, इसी प्रकार पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वो तुम्हें और क्यों न पहनाएगा। Through these verses we can understand that God never expected to clothe us in white in this world. He created this beautiful earth and filled it with multicolored creations. He saw everything is good. It's not a sin wearing colorful clothes, according to Bible. इन छंदों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें इस दुनिया में कभी भी सफेद कपड़े पहनने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने इस खूबसूरत धरती को बनाया और इसे बहुरंगी जीवों से भर दिया। उसने देखा कि सब कुछ अच्छा है। बाइबल के अनुसार रंगीन कपड़े पहनना पाप नहीं है। Your outward changes cannot make you righteous or eligible to heaven. When you come before God, God sees your heart. In Mark Gospel, God said, "Love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." This is what God expects.
out of every believer. आपके बाहरी परिवर्तन आपको धर्मी या स्वर्ग के योग्य नहीं बना सकते। जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। मार्क गॉस्पेल में भगवान ने कहा, अपने पूरे दिल से और अपनी सारी आत्मा के साथ और अपने पूरे दिमाग से और अपनी सारी ताकत के साथ प्रभु से प्यार करो। भगवान हर विश्वासी से यही उम्मीद करते हैं। Don't be get astray by following any practices which will bring outward changes. Instead, follow only those will bring changes inwardly. Anyone, if they need to be awarded white robe in heaven, firstly they must make themselves eligible to heaven. For that, Jesus has said, I tell the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. इसलिए किसी का अनुसरण करके गुमराह न हो। बाहरी परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रथाएं इसके बजाय केवल उन्हीं का पालन करें जो आंतरिक रूप से परिवर्तन लाएंगे। कोई भी यदि उन्हें स्वर्ग में श्वेत वस्त्र से सम्मानित करने की आवश्यकता है, तो सबसे पहले उन्हें स्वयं को स्वर्ग के योग्य बनाना होगा। उसके लिए यीशु ने कहा है, मैं सच कहता हूँ, कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो जल और आत्मा से पैदा न हो। It is mandatory to receive salvation and Holy Spirit to enter into heaven. How to receive Holy Spirit and salvation? The links are there in the description box. If you want, you can utilize that. So understand that wearing white won't make you eligible to heaven, but being righteous will do so. Be safe, get the Holy Spirit and be a heaven citizen. May God bless you till we meet again. स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मोक्ष प्राप्त करना और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। मोक्ष और पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें? विवरण बॉक्स में लिंक है। आप चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं। सफेद वस्त्र धारण करने से आप स्वर्ग के पात्र नहीं बनेंगे, परंतु धर्मी होने से ऐसा होगा। उद्धार पाओ, पवित्र आत्मा पाओ और स्वर्ग के नागरिक बनो। भगवान आपको तब तक आशीर्वाद दे जब तक हम फिर से न मिलें।